قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ حجاب کی آیتیں جو ایک رکوع کی آیتیں ہیں، اس رکوع کی ان حجاب کی آخری آیت کیا ہے؟ اے پیغمبر آپ کہیے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کوئی بچا نہیں۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کیا کہیے؟ یہ کہیے کہ اگر ان کو گھر سے باہر نکلنا پڑے، ضرورت کے وقت میں عورتیں گھر سے باہر نکل سکتی ہیں، مٹر گشتی کے لیے نکلنے کی اجازت نہیں، تو چلو گھوم پھر کر کے آئیں، نہیں، ضرورت کے لیے باہر نکلیں گی تو اگر وہ ضرورت کے لیے باہر نکلیں تو انہوں نے جو گھر میں دوپٹہ اوڑھ رکھا، عام طور دوپٹہ یہاں تک ہوتا ہے، یہاں تک دوپٹہ ہوتا ہے، تو یہ پلہ کھینچ کر کے نیچے لائے، چہرہ چھپا لیں، پھر نکلے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، قریب کر لیں اپنے اوپر اپنے اوڑھنوں کو۔ اوڑھنا اس زمانے میں جیسے آج کل برقعے، اس سے برقعے نہیں تھے جب یہ آیتیں نازل ہوئی، بڑا اوڑھنا، ایک تو چھوٹی اوڑھنی ہے کہ یوں ڈالو تو ابھی گر جائے، نہیں، بڑے بڑے اوڑھنے اوڑھتی تھی عورتیں پہلے، تو وہ اوڑھنا یہاں سکتے اوڑھتی ہیں گھروں کے اندر پیچھے، تو گھر سے اب نکلنا ہے تو اس پلے کو کھینچ کر کے نیچے لائیں، چہرہ سارا چھپا کر اب گھر سے نکلیں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، میرے بھائیو اسی کا نام حجاب ہے، اسی کا نام اردو میں پردہ ہے۔ کچھ بھائیوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں، تو پھر چہرے کا پردہ نہیں تو کیا پاؤں کا پردہ ہے؟ اور کیا پھر ہاتھوں کا پردہ ہے؟ ہاتھوں میں کیا بیوٹی ہے؟ پیروں میں کیا بیوٹی ہے؟ بیوٹی تو ساری چہرے میں ہے، تو اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پھر تو کائے کا پردہ ہے؟ دیکھو، انسان کو اللہ تعالی نے سوچنے سمجھنے کے 5 سورسز دیے ہیں، وہ سارے سورسز فیس میں اکٹھا کر دیے۔ آنکھیں دیکھتی ہیں، کان سنتے ہیں، ناک سونگتی ہے، زبان چکھتی ہے، اور جسم ٹٹولتا ہے، جسم پر ہوا لگی فوراً پتہ چل گیا کہ ٹھنڈی ہوا چلی، گرم ہوا چلی۔ یہ 5 سورسز ہیں علم حاصل کرنے کے، نالج کے۔ نالج یہ سورسز ہیں، نالج دماغ علم حاصل کرتا ہے، اس کے یہ 5 کیمرے ہیں۔ دیکھنے کی چیزیں آنکھوں سے وہ علم حاصل کرتا ہے دماغ، کانوں سے سننے کی چیزوں کا، سونگھنے کی آنکھ سے، چکھنے کی زبان سے، ٹٹولنے کی، ساری جسم میں طاقت رکھتی ہے۔ تو سارے جسم میں تو صرف ٹٹولنے کی طاقت رکھتی ہے۔ پیر کے نیچے کنکر آیا تو ہم دیکھتے ہیں فوراً کیا ہے، معلوم ہے کہ پیر کے نیچے بھی ٹٹولنے کی طاقت ہے، مگر سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سونگھنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت صرف فیس میں ہے۔ اور فیس میں ان 4 طاقتوں کے علاوہ ٹٹولنے کی بھی طاقت ہے، اور اتنی طاقت ہے کہ اس کو تو میں ہاتھ لگاؤں تو مجھے پتا چلے گا کہ یہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، اور فیس پر تو کوئی بھی چیز لگے گی تو فیس خود بخود اس کو فیلنگ کر لے گا کہ یہ چیز ایسی ہے ایسی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہوا سے خمسہ ہیں، 5 حاسے ہیں جن کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، یہ سارے کے سارے چہرے میں اکٹھا ہیں۔ تو چہرے سے بہتر افضل کوئی جز انسان کا ہے ہی نہیں، اسی لیے چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا ہے، چہرے پر مت مارو، بلکہ جانور کو بھی چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا ہے۔
क्यों? जानवर की जो 5 सोर्सेस हैं, जानवर की भी 5 सोर्सेस उसके फेस में है। और तूने थप्पड़ मारा और आंख फूट गई तो, थप्पड़ मारा और कान का पर्दा फट गया तो, थप्पड़ मारा और नाक देख पड़ी तो, लिहाजा चेहरे पर मत मारो। मारना हो तो कहीं जिस्म में और हिस्से पर मारो, चेहरे पर मारने की शरअनी इजाजत नहीं। वो इसी वजह से कि ये मजमउल महासीन है, चेहरा मजमउल महासीन है, पूरी जिस्म की सारी ब्यूटी इस जगह पर आकर के इकट्ठा हुई है। ये संबंधी पॉइंट है, यहाँ सारे की सारी आवाज इकट्ठा है। और फिर उनमें से खतरनाक तो आंखें हैं, लड़ती वही हैं। कानों से भी आशिक होते हैं, किसी की बातें सुनकर कानों से भी लोग आशिक होते हैं, नाक से भी आशिक होते हैं, खुशबू सुनकर, टटोल कर, चक्कर भी आशिक होते हैं। तुमको चक्कर कैसे आशिक होंगे? देखो एक मसला किताबों में लिखा है कि अजनबी मर्द का बचा हुआ खाना या पानी औरत के लिए या पीना मकरूह। किताबों में मसला है कि एक अजनबी मर्द ने खाया बचा, पिया बचा, अजनबी औरत के लिए इस खाने का और इस पानी का इस्तेमाल मकरूह है। क्यों? यहां से इश्क पैदा हो सकता है, यहां से इश्क पैदा हो सकता है, इसलिए मकरूह। हाँ, बैठक में मेहमानों ने खाया और बचा हुआ खाना घर में चला गया, घर वाली औरतों को कुछ पता नहीं कौन सा खाना किसका बचा हुआ है, तो कोई हर्ज नहीं, उसे औरतें खा सकती है। इस मसले को कुछ लोग गलत समझते हैं। इतना तो मालूम है कि ये बाहर दस्तरखान पर से बचा हुआ खाना आया है, मर्दों के खाने के बाद बचा हुआ है। आप लोग सोचते होंगे यहां तो हम बचा हुआ घर में भेजते नहीं है, डस्टबिन में डालते हैं। यहां तो लोग बचा हुआ घर में भेजते नहीं, डस्टबिन में डालते हैं। मेरे भाइयों, ये गलत तरीका है आप लोगों का, जो बचा हुआ खाना डस्टबिन में डालते हो। शरीयत में तो यहां तक हुक्म है कि खाने के बाद प्लेट चाटो और उंगलियां भी चाट लो, ताकि खाने का कोई जुज जाए न हो। और तुम आधी प्लेट उठाकर डस्टबिन में डालते हो, ये कौन सा शरीयत का हुक्म है? ये तो तुम्हारा जेब गर्म है इसलिए चौंचले हैं। असल तो ये है कि रिस्क का दाना दाना बचाना है। हदीस में है तो प्लेट चाटो, तुम्हें नहीं मालूम कि खाने के कौन से जुज में बरकत है। प्लेट चाटो, उंगलियां भी चाटो, उसके साथ कोई जुज जाना नहीं चाहिए। तो जो असल इस्लाम का मसला है उसे ज़हन में रखो कि दस्तरखान पर खाने के बाद जो बचा हुआ खाना घर में गया है, तो इतना तो औरतें जानती हैं कि मर्दों का बचा हुआ है, लेकिन कौन सी प्लेट में किस मर्द का आया है ये औरतें कुछ नहीं जानती। लिहाजा ये बचा हुआ खाना घर की औरतें बच्चे खा सकते हैं। मैं जो मसला बतला रहा हूं, जो किताबों में लिखा है, वो मसला ये है कि पार्टिकुलर मर्द ने खाया या पिया, बचा, और औरत को मालूम है कि ये फला मर्द का बचा हुआ खाना या पानी है, तो किताबों में लिखा है कि उसका खाना पीना औरत के लिए मकरूह है। क्यों? चखने से भी इश्क पैदा होता है, और टटोलने से, हाथ लगने से तो इश्क होता ही। हाथ लगने से इश्क होता है, चखने से इश्क होता है, सूंघने से इश्क होता है, सुनने से इश्क होता है, और सबसे तमाम इश्कों का मजमुआ आंखें लड़कर के इश्क पैदा होता है। लिहाजा सबसे अहम पर्दा तो आंखों का है, सिर्फ चेहरे का नहीं है। अब तो सारी दुनिया में, वो सारी दुनिया की औरतों ने पर्दे में आंखें तो खोल दी, अजीब तरह का पर आंखें खोल रखी है, बाकी चेहरा छुपा रखा है। आंखों का तो सबसे पहले पर्दा करता है, यही तो सबसे पहले लड़ती है और यही तो फितना सामानी करती है। बहरहाल इस आयत करीमा को गौर करो। ऐ पैगंबर, कहिए अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मुसलमानों की औरतों से कि वो अपने चेहरों पर अपने ओढ़ने का पल्ला खींच कर नीचे ले आए और चेहरा छुपा कर घर से निकले। युदनीन अलैहिन्ना मिन जलाबिहिन्ना,
क्या फायदा है इस हिजाब का? इस हिजाब का फायदा ये है कि हर आदमी ये समझेगा कि शरीफ औरत है। फला यूज़ैन, कोई सताएगा नहीं उसे। अगर एक औरत बुरके में, बाकायदा बुरके में, आजकल का फैशन वाला बुरका नहीं जिसमें आंखें खुली हैं, आजकल का जो फैशन का बुरका लड़कियों ने निकाला है जिसमें आंखें खुली हैं, वो नहीं, बाकायदा अगर पर्दे में, बुरके में, हिजाब में है तो कोई गलत नजर उसकी तरफ नहीं उठाएगा, हर आदमी समझेगा शरीफ औरत है। और चेहरा खुला है तो हर बद नजर चेहरे को देखेगा, और आंखें खुली हैं तो हर बद निगाह आंखें से आंखें लड़ाएगा। तजुर्बा करके देखो तो चेहरा मुकम्मल उसका छुपा हुआ तो हर आदमी समझेगा शरीफ औरत है, बापर्दा औरत है, कोई उसकी तरफ नहीं देखेगा। तो फरमाया ज़ालिका अदना अन युअरफ़न फला युज़ैन, ये बात यानी चेहरे पर ओढ़ना, नीचे करके घर से बाहर निकलना, ये करीब तर है इस बात से कि वो पहचान ली जाए कि शरीफ औरत है, बस वो न सताई जाए, यानी उस पर कोई बुरी निगाह न डाले। न सताई जाए का मतलब बुरी निगाह न डाले। ये जो बुरी निगाह डालना है ये भी दर हकीकत सताना है। ज़ालिका अदना अन युअरफ़न फला युज़ैन वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा। फरमाया कि देखो अल्लाह बड़े बख्शने वाले हैं, बड़े मेहरबानी फरमाने वाले हैं। औरतों से कोताही अगर छोटी मोटी नादानिश का कोताही हो जाए तो अल्लाह बख्श दे, वो गफूर रहीम है। ये आयत करीमा ये दर हकीकत हिजाब की आयत करीमा है।